नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आम आदमी पक्षान आयच्यान कॅम्पेन सुरू केला आनी ते म्हणटा की राजकारण निवळ करतले. पूण सगळ्यांक खबर आसा ही कॅम्पेन म्हणजे राजकीय कॅम्पेन आनी फुडल्या इलेक्शनाची तयारी आम आदमी पक्षान सुरू केल्ली आसा. आता हो पक्ष जेन्ना तयारी सुरू करता तेन्ना वेगवेगळे प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आसा. 2017 वर्सा जेन्ना आम आदमी पक्षान गोंयांत निवडणूक लढयली तेन्ना तांणी 39 म्हणजे 39 सिटाचेर निवडणूक लढयली आनी 21 सीट ते जिखपाक शकले ना. हे फावटी ते तशेंच करतले काय एलायन्सान वतले? तांकां काँग्रेस नाका, बीजेपी नाका, पूण बाकीचे पक्ष जाय काय नाका हे जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळटले राघव चड्डा, आम आदमी पक्षाचे खडेगाठ फुडारी, सिनियर लीडर फ्रॉम दिल्ली. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ अस. आम आदमी पार्टी 2017 और आम आदमी पार्टी 2022 is there a difference between as far as Goa is concerned? We might see the difference, but as far as party is concerned, have you seen the difference? There is a sea change between the Aam Aadmi Party of 2017 and the Aam Aadmi Party of 2021 in Goa. 2021 में आम आदमी पार्टी is a robust organization. हमारा हर गांव में, हर विलेज में ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर है, कार्डर है, सपोर्टर है. अब आम आदमी पार्टी हर गोवन की फैमिली तक पहुंच गई है, उनके घर तक पहुंच गई है. इन 2017 आम आदमी पार्टी was a theoretical option, was a theoretical alternative, and in 2021-2022 Aam Aadmi Party is a practical alternative. There is a huge difference between 2017 and 2021, and that is the difference. But 2017 में भी आप जब लड़े थे, you had claims that we will win X number of seats. You almost contested on 39 seats. Now 2022. So you think that there is a trust deficit right now amongst the voters? People will think also you are in the same 2017 kind of mode. People have realized over the years, and particularly in the last 5 years, that both BJP and Congress practice the politics of betrayal. You vote for Congress, but BJP steals your vote. You vote for BJP, they impose Congress on you. In Goa today, voting for Congress is equal to voting for BJP, and voting for BJP is equal to voting for Congress. It's the same, there is no difference. आज ही जुलाई 2019 में, इस महीने 2019 में कांग्रेस का 10 एमएलएज 15 में से कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चला गया. पीपल ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी वोटेड फॉर कांग्रेस. दे वांटेड कांग्रेस टू विन, बट दैट कांग्रेस पर्सन हु वन वेंट टू द बीजेपी. No, but आम आदमी पार्टी so मैं भी कह रहा हूं, therefore this politics of betrayal has been going on for a very long time. People of Goa don't like betrayal. It is in their honesty and uprightness is in the DNA of the people of Goa. But we have seen, I'll just interrupt, but we have seen for by polls, जितने भी betray करके चले गए थे, except one guy, everyone got to. Look, by polls, panchayat polls, these polls are no barometer. Every I'm talking about assembly by polls, जहाँ पे, for example, Panjim में, for example, Shiroda में, everyone got. Rupesh, the Aam Aadmi Party is preparing for the 2022 elections. These small elections, some local people in the party wish to fight, they fight. That is not of significant consequence. What is of consequence is our preparations for the 2022 elections. And for that in mind, when I travel to the length and breadth of Goa, from Panjim to Shale Milauli, when I travel across Goa, people say only one thing. People say, we are fed up of BJP and Congress, their politics of betrayal and backstabbing. We don't want to get backstabbed, and we pledge that at least once, at least in 2022, we will boycott BJP, we will boycott Indian National Congress, and we will vote for a third alternative. So there are different kind of voters. One voter would be, I don't like BJP, so I am voting for you. I don't like Congress, I am voting for you. And another kind of voter who says that I like Aam Aadmi Party, that's why I am voting for Correct. you. So the third kind of voter is going to stand with you. No, ये लोग तो शायद उसे गुस्सा है इसीलिए आपसे वोट तो आएगा तो सही ना. फॉर सम रीजन और द अदर दे विल वोट फॉर आम आदमी पार्टी. इसीलिए आज जो अंडरलाइंग सेंटिमेंट है ना गोवा के लोगों में, जो अंडरलाइंग सेंटिमेंट है वो ये है कि सबको ट्राई कर लिया. वी हैव ट्राइड बीजेपी, वी हैव ट्राइड कांग्रेस. This time a third alternative needs to be tried.
अब कम से कम आम आदमी पार्टी हमारा वोट मच्छी बाजार में तो नहीं बेचेगी ना। कांग्रेस ने तो फिश मार्केट में जाकर हमारा वोट बेचा और बीजेपी ने हमारा वोट खरीद लिया। और वोट की बात नहीं है। व्हाट इज अ वोट? वोट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। हमारा सब कुछ बेच दिया उन लोगों ने। अब आम आदमी पार्टी से उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए कुछ अच्छा करे। Congress says that they were betrayed. They didn't betray anyone. They were betrayed by BJP. They were betrayed by their own people who went to BJP. कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी, मुझे लगता है, जो चुनाव में थोड़े बहुत एमएलएज, खाली गोवा में नहीं अक्रॉस इंडिया थोड़ा बहुत एमएलएज लाती है और वो सारा एमएलएज फिर अपने बीजेपी के लोगों को बेच देती है। देयर इज अ प्रॉपर, आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो सेल डीड भी साइन करते हो कि हम इतना एमएलए इस रुपए में बेच रहा है, तुम इतना एमएलए इतना रुपए में खरीद लो। सेल डीड भी साइन करते हैं। अब तो दे हैव बिकम प्रोफेशनल in So you don't believe they were betrayed. You believe that they were betrayed. They were knowing that these people were. They betrayed the people of No, Goa. they were betrayed by these MLAs. You don't believe. No. Who is MLA is the party. You can't distinguish between the two. MLA is the party. What is BJP today in Goa? BJP is the legislature party. So ये तो पार्टी का अगर सारा लोग ही छोड़ के चला गया, 17 MLAs जीते थे, 2 ने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, 10 ने जुलाई 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बाकी जो बचे उनके बच्चों ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, तो बचा क्या? पूरा पार्टी चला गया बीजेपी में। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिट्रेल जो है ना, ये गोवा का लोग फॉरगिव नहीं करेंगे, फॉरगेट नहीं करेंगे। गोवा के लोग लड़ाई लड़ेंगे और इस बार इन दोनों को प्लेज करेंगे कि एटलीस्ट वंस वी विल नॉट वोट फॉर दीज गाइज। आम आदमी पार्टी ने आज एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया। ये कैंपेन गोवा की इलेक्टोरल हिस्ट्री में दर्ज होगा। इस कैंपेन का नाम है लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स। आई अर्ज, मैं आपके थ्रू लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, गोवंस को, कि www.letscleangoapolitics.org पे लॉगिन करें और रजिस्टर करें और प्लेज लें दैट हम डिफेक्टर्स को वोट नहीं करेंगे, हम बीजेपी और कांग्रेस को बॉयकॉट करेंगे एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग 2022 इलेक्शन। This is your election campaign. अब आप इसको इलेक्शन कैंपेन देखिए या आप इसको क्लीन अप कैंपेन देखिए, मैं तो इसे एक बड़े सिंपल एनालॉजी से समझता हूँ। जब घर के अंदर कहीं कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो कैसे साफ करते हो आप? झाड़ू लेके साफ करते हो। अब गोवन पॉलिटिक्स के अंदर जो कूड़ा कचरा है वो कैसे साफ होगा? झाड़ू लेके साफ होगा। So okay, back to AAP's politics. Are you going for an alliance with any other political party? देखिए, it is too early to even conceive the idea of an alliance. आपने तो कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया। अलायंस होगा नहीं होगा ऐसा विचार, ऐसा सोचना भी अभी आम आदमी पार्टी ने शुरू नहीं किया है। जब कुछ बनेगा, कोई सिचुएशन बनता है, कोई रिजेक्शन ऑफ एन अलायंस और एक्सेप्टेंस ऑफ एन अलायंस, जो भी होता है वो आपको समय पे हम बताएंगे। नहीं, आपने कैंपेन स्टार्ट कर लिया है। सो पर अलायंस के बारे में नहीं सोचा है। तो 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन स्टार्ट कर लिया है। हर 40 कंस्टिट्यूंसी नहीं, हर विलेज में कैंपेन करेंगे, हर जगह कैंपेन करेंगे, पूरा गोवा में कैंपेन करेंगे। सो अलायंस is happening or not happening? Are you not ruling out the alliance? मैंने तो आपको बता दिया। I am very clearly saying कि अलायंस के बारे में सोचा ही नहीं है। We have not even conceived the thought of either having an alliance or not having an alliance. नहीं, आपका जब ब्रूम की बात कर रहे तो ब्रूम में कितने हाथ है, कौन ब्रूम लेके जा रहा है, वो भी सकते हैं। ब्रूम तो ब्रूम ही है। ब्रूम वो तो हर जगह ही सफाई करेगा। ब्रूम क्या क्या सफाई करेगा? सारा सफाई करेगा ब्रूम। ओके, तो alliance की बात पे neither you are accepting that there will be alliance nor you are denying that there will be alliance. I am saying we have not even thought of an alliance. Not even that thought of idea has not even been conceived in our heads. अगर कुछ होगा, कोई डेवलपमेंट होगा, either acceptance of an alliance or rejection of an alliance, आपको बताएंगे। कुछ either formation of an alliance or non formation of an alliance, आपको सबसे पहले बताएंगे। तो alliance की जब बात चलेगी तो कांग्रेस is ruled out for any kind of alliance. बीजेपी और कांग्रेस गोवा को अल्टरनेटिव नहीं दे सकते। देयर हैज टू बी अ थर्ड अल्टरनेटिव व्हिच इज द आम आदमी पार्टी, जो गोवंस मांग रहे हैं। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इग्नोर करें, यू आर नॉट इवन मेंशनिंग देयर नेम। देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज हुज रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर इन लाइक एमजीपी इज देयर, गोवा फॉरवर्ड इज देयर, एनसीपी इज देयर। द कैंपेन दैट आम आदमी पार्टी हैज लॉन्च्ड टुडे इज अबाउट द बिट्रेयल
done by these two main political parties. These two were at one point formidable political forces. और इन्होंने ही तो ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग मैक्सिमम इन लोगों ने ही किया. इंजीनियर यही करते हैं. आपका और हमारा वोट, आपका हमारा विश्वास बाजार में खरीदते बेचते हैं. वही मैं कह रहा हूँ, गोवा के लोगों को आमदार चाहिए, घातदार नहीं जो विश्वासघात करे. हमारे वोट से जो नेता नोट कमाए, उस नेता को, उस आमदार को हम वोट नहीं देंगे. और गोवंस वोट देते हैं सरकार बनाने के लिए, व्यापार के लिए नहीं कि हमारे वोट को आप पैसे देके खरीदिए. How do you assure that your MLAs will not switch off? Because ऐसे भी like आम आदमी पार्टी and its leaders and its MLAs are made up of a different material. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इन द ईयर 2013 जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ी, हमें 28 सीट्स मिला था आउट ऑफ 70. बीजेपी को 32 सीट्स मिला था. 36 वाज द मेजॉरिटी मार्क. जिसके पास 36 MLAs है वो सरकार बना ले. बीजेपी के पास 32 था, यानी कि 4 शॉट. 4 MLAs खरीदना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. यहाँ तो 17 के 17 खरीद लिए. लेकिन एक साल बीजेपी लगी रही, हमारे 28 MLAs में से 4 नहीं, 1 MLA को भी नहीं खरीद पाई. यू नो व्हाई? बिकॉज आम आदमी पार्टी इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल. So when you talk about MLAs, candidates, you require a face. Here Aam Aadmi Party looks like a faceless party. कि कोई face ही नहीं सामने आ रहा है except for couple of faces which have been inducted, जैसे प्रतिमा कुतिन्नो, जैसे Vanzi और some other guys who are actually working on field. जैसे राहुल मामरे of course is your convener. लेकिन एक face नहीं आ रहा है कि we can say कि this guy is CM's face for Aam Aadmi Party. एट द राइट टाइम आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनी रिवील करेगी. आपको सबसे पहले करेगी कि फेस कौन होगा, फेस कैसा होगा, उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है. ऑल दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द So पार्टी. when you are facing Goa elections, there will be CM's face that will be projected. ऑल दिस इज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी. आम आदमी पार्टी आने वाले समय में आपको ये सारी चीजें बताएगी. इट्स टू अर्ली टू कमेंट. कैंपेन स्टार्ट कर लिया और स्ट्रेटजी नहीं डिसाइड किया. स्ट्रेटेजी है ना, पर आपको बताएंगे ना. स्ट्रेटेजी आज नहीं बताएंगे, स्ट्रेटेजी आपको क्लोजर टू इलेक्शंस बताएंगे. Okay. अभी तो फिर इलेक्शंस थोड़ा दूर है. ओके, सो आप मानते हैं कि गोइंग विद अ सीएम्स फेस फॉर एनी इलेक्शन हेल्प्स यू? बिकॉज इन दिल्ली यू डिड दैट एंड इट हेल्प्ड. देखिए, इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी और स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है. देयर इज नो सेम रूल फॉर एवरी स्टेट. ऐसा नहीं है कि एक फार्मूला जो इस स्टेट में अप्लाई करता है वो दूसरे स्टेट में भी अप्लाई हो जाए. ऐसा नहीं होता कभी भी. लेकिन हाँ, आने वाले समय में फेस को लेकर आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आपके सामने कर सकती है. बड़े अनाउंसमेंट्स, बिग लीडर्स आर कमिंग. आपको आने वाले समय में बताएंगे. ओके, अनदर थिंग इज 2017 में ये हुआ था, आम आदमी पार्टी वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज सेड कि नोन डेविल इज बेटर देन अननोन एंजल में भी. आपको परसेप्शन चेंज हो गया? यू आर नोन इन गोवा बाय नाउ. परसेप्शन लोगों का ऐसे बदला है, गोवंस का परसेप्शन, कि बीजेपी एंड कांग्रेस कंटिन्यू टू बी द नोन डेविल्स. आम आदमी पार्टी, in your words, was an unknown angel. Now we've become a known angel. And I'll But explain my to you words, why. they were said actually. I'll explain to you why. ये कोविड-19 पैंडेमिक आप देख लीजिए. सारी इंडस्ट्री बंद, होटल्स बंद, हॉस्पिटैलिटी बंद, लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेसेस बंद हो गए. लोगों के पास घर में राशन नहीं था, पैसा नहीं था, दाल चावल फिश नहीं था, ब्रेड नहीं था. उस दौर में, उस टाइम पे बीजेपी रूलिंग पार्टी ने या गोवन गवर्नमेंट ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लोगों को खाना नहीं दिया. कांग्रेस जो ऑपोजिशन पार्टी है, जैसी तैसी ऑपोजिशन पार्टी है, उसने लोगों के लिए काम नहीं किया, खाना नहीं दिया. लेकिन आम आदमी पार्टी जो एक पॉलिटिकल फोर्स है, जिसका एक भी आमदार नहीं है, उस पार्टी ने गोवा के कोने कोने में जाके लोगों के घरों पे राशन दिया, खाना दिया, ब्रेड बटर रोटी दिया और लोगों का पेट भरा. सो दिस शोज, जब ये सारी पार्टीज फेल हो गई, इन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा. इनका तो आमदार घर से भी नहीं निकला. It also उस looks टाइम like पे आम आदमी पार्टी ने लोगों के लिए काम किया, लोगों की रक्षा करी. it looks like your election campaign thing that you are reaching to everyone because COVID first wave पे शायद आप लोग नहीं थे.
आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली बहुत मेच्योर हुई है उस समय से लेकर आज तक, और हमने लोगों को जा जाकर फर्स्ट वेव में भी मदद करी थी जितना कर पाए. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिसोर्सेज. हमें बहुत लोगों ने हेल्प किया, बहुत लोगों ने राशन दिया कि अब आप बांटो, हमने बांटा. तो आम आदमी पार्टी ने जो हेल्पलाइन शुरू करी गोवा के लोगों के लिए, जिसपे आप खाना नहीं है तो खाना मिलता है, ऑक्सीमीटर नहीं है तो ऑक्सीमीटर मिलता है, मेडिकल एडवाइस नहीं है तो डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस मिलता है, ये हेल्पलाइन जो था आम आदमी पार्टी का, ये गोवा के लोगों की लाइफलाइन बन गया. दैट इज द डिफरेंस. ओके, दो चीज़ें रहती है. एक प्री पोल अलायंस विच यू सेड कि वी आर नॉट गिवन अ थॉट टू इट. एक दूसरा रहता है कि वी विल सपोर्ट सम गवर्नमेंट. सो कल अगर आफ्टर इलेक्शंस इफ रिक्वायर्ड आम आदमी पार्टी की अगर कम एमएलए आ गए, I never answer these hypothetical questions. people want to know. People want to know this. I will never answer these hypothetical questions. Don't you think people will ask you these questions? अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो आप और मैं क्या करेंगे, कहाँ भागेंगे? अगर वोल्केनिक eruption हो गया तो आप राइट डायरेक्शन में जाओगे कि लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे? All these are absolutely hypothetical No, questions. people will ask you these questions because we have I am seen not a parties changing the sides after elections. Let me tell you, I can answer this in only one way. That our heart beats for the welfare of Goa, and our आमदार्स will be such people जो अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अपना फैमिली का अपना डेवलपमेंट नहीं, गोवा के लोगों का डेवलपमेंट करेंगे. ऐसा आमदार हम लेकर आएगा और गोवा के लिए काम करेंगे. Okay, do you see yourself as a formidable opposition to BJP right now at this juncture? At this juncture, Aam Aadmi Party is the only political force in Goa to reckon with. बीजेपी और कांग्रेस तो डिमिनिश हो गया है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स. लोगों ने उनका पॉलिटिक्स ऑफ बिट्रेयल देख लिया है, मर्जर एंड एक्विजिशन का पॉलिटिक्स देख लिया है. एमएलए खरीदो, ये करो, वोट खरीदो और अपना डेवलपमेंट करते हैं. इनसे पूछो, हमने कैंपेन शुरू किया लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स, कि इन डिफेक्टर्स को हराना है. दे से कि हम बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी इसलिए गया क्योंकि हमें अपने एरिया का डेवलपमेंट करना था. एरिया का कोई डेवलपमेंट हुआ? पर्सनल डेवलपमेंट हुआ. ऐसे लोगों को हराना है. Okay, last from my side. So Aam Aadmi Party, when can we expect Aam Aadmi Party to roll out their faces for Goa elections? Very soon, and I will keep coming to Goa. Very soon कब? Very soon. This is my fourth or the fifth trip in the last few months. अब I will चेहरे keep नहीं बता रहे हैं अभी. चेहरा बताएंगे आपको आने वाले समय में. Okay, thank you. Slowly and steadily. Thank you very much for spending time with us. Thank you, रुपेश बाप. ह्या आशिल्ले राघव चड्डा आम आदमी पार्टीचे लिडर. ते म्हणटा की अलायन्सा बद्दल सध्या तरी विचार जावना, पोस्ट पोल कितें जाता ताजेरूय आमी सध्या उलोवपाक शकपाना. एंड व्हेरी सून रोखडेच आमी आमचे कोण उमेदवार आसात ते तांची वळेरी जाहीर करतले. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल www.goaNewsUp.com. कीप वॉचिंग अस.